Whenever you have any idea, any crazy idea, you immediately hear that voice saying, "That was stupid. Why did you even say that?" Hi, I'm Mishani. I'm a counseling psychologist. Today we are going to talk about self criticism. Welcome to my YouTube channel. We all know that voice, that constant criticizing voice, the one that tells you you're not good enough. And we just think that is just me. I tend to criticize myself. It's totally normal. That is a part of my personality, and that's how I improve. That's how it helps me. What if that voice inside your head is just a one member of the whole team that is inside your head? Let that sink in. So these lots of voices have roles inside your head, and there is this manager sitting inside your head that has this responsibility of which member of that club. So this whole bunch of team of criticizers has taken over that manager's chair. So today I want to really show how your inner world feels like, who are the members of your inner world and how they actually help you and not help you live life. I promise I won't use any psychology confusing jargons that is gonna bore you. Everything I explain will be absolutely in Hindi and in very clear language. So I'm gonna ask you 5 questions in this video, and by the end of the 5th question, you're gonna see yourself in a completely different way. So the first question is your mind trying to solve a feeling with the thought? So let's start here. If you're going to a meeting and you have this whole pressure that you have to perform really well and you cannot fuck up, sorry for my language, so you have constant anxiety, you know what I'm gonna say, what if कुछ गलत हो जाएगा, आपने जो भी काम करा है आप उसे invalidate कर रहे हो कि आपने कुछ इतना अच्छे से काम नहीं करा, एंड एक imposter syndrome फील हो रहा है, that everyone will know that you don't know anything. So you have that feeling of anxiety, constant worry, and in this immense load of feelings, your mind start thinking, what if I mess up? Remember that time that you froze? And here's this question. In this embodiment of feeling anxiety, ask this question to yourself. जो भी मेरे thoughts आ रहे हैं दिमाग में, are they solving what I am feeling, that is anxiety? Is it actually trying to solve a feeling? And register all your thoughts, whatever you are thinking in this anxious time. Psychologically, what is happening? Whenever your mind sees a problem, and here the problem is feeling. So whenever your mind sees a problem, it actually tries to solve it. And it solves with logic एंड एनालिसिस. सो माइंड का खुद ब खुद ट्रबल शूटिंग सेशन चलता रहता है. सो जैसे ही माइंड को एक थ्रेट दिखा, एक दुश्मन दिखा इन देयर टेरिटरी, व्हाट दे विल डू, दे विल प्लान फॉर फेलियर. पहले ही रेडी हो जाएंगे सब कुछ नेगेटिविटी लेके. ये थ्रेट आया है, अब मैं यहाँ से भी सेफ फील कर लूँ, मैं वहां से भी सेफ फील करूँ. दिस प्लानिंग ऑफ फेलियर एक्चुअली फ्यूल्स द प्रॉब्लम. तो ये जो एंजाइटी की फीलिंग हो रही है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपके दिमाग को एक्चुअली सॉल्व करनी है. ये एक्नॉलेज करनी है, सॉल्व नहीं करनी, एक्नॉलेज करनी है. एंड कैच योर माइंड इन द एक्ट ऑफ सॉल्विंग द फीलिंग. जब भी आपका दिमाग एक फीलिंग को सॉल्व कर रहा होता है अपनी खुद की लॉजिकल एनालिसिस निकाल के, ट्राई टू नोटिस योर ओन पैटर्न्स कि ओके, शायद अभी मुझे फीलिंग फील हो रही है एंड मेरा दिमाग 10 तरीके की लॉजिक ढूंढ रहा है. उस लॉजिक को पकड़ो. ओके लॉजिक, आई सी यू, यू आर ट्राइंग टू थिंक योर वे आउट ऑफ दिस अनकंफर्टेबल फीलिंग. और जब हम अपने खुद के लॉजिक को एक्चुअली नोटिस करेंगे तो यू विल क्रिएट अ गैप बिटवीन यू एंड द फीलिंग दैट यू आर फीलिंग. नो लॉजिक but acknowledgement of feeling. Let that sink in. What job is your self-criticism trying to do? क्या रोल है इस self-criticism का? So let's take this self-criticism voice in one place. We hate it. Definitely we do not enjoy it. But let us give this space to this self-criticism voice. क्या बोल रही है ये सेल्फ क्रिटिसिज्म वॉइस? एंड भले ही हम इस सेल्फ क्रिटिसिज्म वॉइस को बहुत हेट कर रहे हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट हमें उसे थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ेगी उसे समझने की. तो चलो इस सेल्फ क्रिटिसिज्म वॉइस, जिसे हम
कुछ भी आप नाम दे सकते हो अपनी सेल्फ क्रिटिसिज्म वॉइस का। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, विद मी आई फेस सेल्फ क्रिटिसिज्म फॉर मेकिंग दिस वीडियो। आई फील अनकंफर्टेबल, आई फील दैट लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, आई लुक अगली। For an example, this is my self-criticism voice. Name this self-criticism voice. It could be anything. For one client of mine, he has the self-criticism voice and उसका नाम उसने पांडु रख दिया। मैंने अपनी self-criticism voice का नाम बेला रख दिया। तो कुछ एक नेम दे दो उसको अपने दिमाग में, ताकि आपको पता तो लगे आप किससे डील कर रहे हो। Secondly, what you're gonna do is, let's ask a question to this voice. What are you doing in my head? What are you protecting me from? आप मुझे किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हो? तभी तो आप प्रेजेंट हो। सेल्फ क्रिटिसिज्म, he or she is present in your head. थोड़ा सा सुनने में वियर्ड लग रहा होगा, but that's how therapy works. Okay, so let's take this self criticism voice. Okay, what are you trying to protect me from? कुछ आ रहा है मन में, दिमाग में? ये सेल्फ क्रिटिसिज्म वॉइस आपके दिमाग में 10 तरीके की चीजें आ रही होंगी, मुझे ये भी बोलती है ये वॉइस। थिंक अबाउट इट, गिव इट सम टाइम। दैट वॉइस इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम failure or in some cases judgment of other people. For an example, the one voice that says you're not good enough, what it is trying to do, it is trying to protect you from other people's point of view and try to shield you from the pain of rejection. Mind तो pain नहीं लेना चाहता, mind तो चाहता है कि वो हमेशा healthy रहे, protected रहे। But if you're trying something new, this self-criticism person in your head is trying to protect you and shield you. That is what its role is. How are we seeing this self-criticism voice? Are we seeing it as an enemy? I criticize myself, it's not a good thing, and da da da. Are you seeing it from an enemy point of view, or are you seeing it from a protector? But that protector is kind of misguiding you. Learn how to see this. If you see this as an enemy that is trying to cage you in criticism, it's not gonna be helpful. You're gonna see lots and lots of videos on self-criticism, be positive and फलाना ढिमका, बट उससे बात नहीं बनती है। बात किससे बनती है? जब हम इस प्रोटेक्टर को, जो थोड़ा सा मिसगाइड कर रहा है, हम उस protector को समझें, why that protector is helping us, why that protector is criticizing us, why it is protecting us to shield us from others people's judgment, from the outer world, which is very harsh. So today in this video, let's try to thank this protector that is kind of misguiding you, but it has still helped you. आप जितने भी बड़े हुए हो, इस protector ने हमेशा आपकी हेल्प ही करी है, बट थोड़ा सा एक्सट्रीम में चला गया है प्रोटेक्टर। हमें इसे क्या करना है? हमें इसे थोड़ा सा लिमिट में लाना है। सो लेट अस से थैंक यू टू दिस प्रोटेक्टर। थैंक यू दैट आपने हमें प्रोटेक्ट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, अपने खुद के बारे में ऐसी कौन सी स्टोरी आपने रची है दिमाग में जो ट्रुथ है? व्हाट स्टोरी ऑफ योर सेल्फ इज एक्चुअली अ ट्रुथ इन योर माइंड? हर कोई अपनी कहानी में एक हीरो होता है, वी से मेन कैरेक्टर वाइब्स। अपनी कहानी में एक अपनी स्टोरी हमने जो लिखी है वो इस तरीके से दिखती है। आई हैव ऑलवेज बिन दिस पर्सन, मैं तो ऐसा ही हूँ ना यार, मेरे साथ ऐसा ही होता है यार, मैं ना बेवकूफ हूँ, मुझसे यही होता रहता है। आई हैव टू बी परफेक्ट टू बी लव्ड, दैट्स हु आई एम। सी, आई एम नॉट अ वेरी लाइकेबल पर्सन। ये स्टोरीज हमारा एक पर्सपेक्टिव बनाती हैं लाइफ के बारे में, हमारा एक लेंस बनाते हैं। हम लाइफ को इसी लेंस से देखते हैं। आपकी एक पर्टिकुलर स्टोरी होगी, आप सोच सकते हो, थोड़ा सा वक्त ले सकते हो, बट उस स्टोरी में आप किस तरीके की दिख रहे हो वो बहुत मैटर करता है। तो जो भी आपकी कोर स्टोरीज होंगी ना, वो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल फैक्ट हो, वो सच में ट्रूथ ही हो। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई इंसान अपने बारे में सोचता है कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। क्या ये एक्चुअल फैक्ट है? थिंक अबाउट इट। इट्स व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ थ्रू अ लेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन वी आर इन लव, तो हमारे रोज टिंटेड ग्लासेस हो जाते हैं ना। ये स्टोरीज भी रोज टिंटेड ग्लासेस की तरह ही हैं, बट ये रोज टिंटेड नहीं है, ये ब्लैक टिंटेड है, ये क्रिटिसिज्म के टिंटेड है। इन थेरेपी वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस लेंस इज बिल्ट। हमने ये जो चश्मे लगा रखे हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म के, इस स्टोरी के, जो हम अपने आप को बार बार सुनाते रहते हैं, ये तो मैं तो ऐसा ही हूँ ना, मैं तो ऐसी ही हूँ ना, मेरे साथ ऐसा ही होता है। What are these? These are stories. These are actual stories that you have built up and you have made it so truthful कि यही सच है। In this video, try and understand, क्या ये एक्चुअली एक सच है? Try and figure out, लिस्ट करो, 1 2 3 4 5 6 10 चीजें लिस्ट करो। लिस्ट करने के बाद उसके बारे में सोचो, क्या ये सच में सच है जो मैं ये स्टोरी अपने बारे में
बोलता जा रहा हूँ सिंस अ डेकेड, हीलिंग बिगिंस व्हेन यू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। ये स्टोरी से गैप लेना पड़ेगा, दैट्स व्हेन हीलिंग हैपेंस। सो जब भी नेक्स्ट टाइम ये जो ये स्टोरी आपके मन में चल रही है और एंजाइटी वाली फीलिंग जब आती है बिफोर अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो लेट्स टेक अ टाइम टू एनालाइज एंड नोटिस कि अच्छा ये आई एम नॉट गुड इनफ वाली स्टोरी है जो मैं अपने आप सुना रहा हूँ इतने टाइम से। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पॉइंट्स बना लिए हैं, ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ये स्टोरी हमने जो सुनाई है वो फैक्ट्स से मिलती जुलती है भी या नहीं। सो आफ्टर दिस वीडियो एंड्स, ट्राई एंड सी कि वन, आपने कौन सी स्टोरी बनाई है और उसके सामने उसके फैक्ट्स। सेकंड, आपने कौन सी स्टोरी बनाई है और उसके फैक्ट्स। आई एम नॉट गुड इनफ, फैक्ट्स लिखो, क्यों नहीं हो, क्या हुआ ऐसा रियल लाइफ में जो आप नहीं हो गुड इनफ, 10 रीजंस लिखो। दूसरा कुछ है आई एम लेजी, तो 10 कुछ रीजंस लिखो, या कुछ और सेल्फ क्रिटिसिज्म वाला दिमाग में पॉइंट आता है वो लिखो और उसके 10 पॉइंट्स लिखो कि ये सच में ट्रूथ है कि नहीं। नेक्स्ट टाइम से आपको पता लग जाएगा, जब भी आप एंजाइटी वाली सिचुएशन में हो, आई एम नॉट गुड इनफ आया दिमाग में, ओ ये वाली स्टोरी सुना रहा हूँ मैं अपने आप को, इसे पकड़ा, देखा कि ओके ये स्टोरी है, मैं इसमें काम कर चुका हूँ, साइड करूँ। दूसरा क्रिटिसिज्म आया, अच्छा ये स्टोरी है, ये इसमें मैं थेरेपी में काम कर चुका हूँ, साइड करो। तीसरा क्रिटिसिज्म एंड so on. Question number 4. Am I at a war with myself in my mind? Within your parts, एक पार्ट सेल्फ क्रिटिसिज्म है जो हमने डिस्कस करा है, और भी वॉइसेस हैं दिमाग में जो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, जो हम आज नहीं कवर करेंगे, बट हम सिर्फ एक पार्ट से बात कर रहे हैं जो सेल्फ क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है, जिसे आपने अपना कोई अभी तक एक नाम सोचा होगा, कोई भी दिमाग में आ रहा है, जस्ट ट्राई एंड थिंक अबाउट सेल्फ क्रिटिसिज्म वॉइस को एक नाम दो, पॉज करो वीडियो को और नाम दो, कैसा फील हो रहा है। किसी के लिए वो रॉटन एग वाला फील दे सकता है, किसी के लिए वो बेला वाला फील दे सकता है। कोई भी सेल्फ क्रिटिसिज्म की वॉइस और भी वॉइस के साथ जो हेड में है, वॉर में है या नहीं, दैट्स योर क्वेश्चन। लेट्स डीप डाइव। सो ये एक ब्यूटीफुल सा आइडिया है जो हम थेरेपी सेशंस में हमेशा यूज करते हैं। यू आर नॉट अ वन सिंगल थिंग बट यूर अ पार्ट ऑफ होल कॉन्स्टेलेशन। इसका मतलब क्या है, जब भी हम, आप नोटिस करोगे, जब भी हम बहुत थके हुए होते हैं, व्हेन वी आर वेरी एग्जॉस्टेड, तो हमें लगता है यार ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, एंड आप बहुत एग्जॉस्टेड और ऐसे बिखरे पे फील करते हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे एक सेल्फ क्रिटिसिज्म का पार्ट है हमारी ब्रेन में, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट काम है। जब ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल, सेल्फ क्रिटिसिज्म का पार्ट क्रिटिसाइज कर रहा है आपको, एक एंगर पार्ट भी है जो सिर्फ एंगर ही दिखाता है, एक लवेबल पार्ट भी है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एम्पैथी दिखाता है, एक ड्रीमर भी है जिसे ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, जिसे दुनिया की सारी अचीवमेंट चाहिए। तो जब ये पार्ट्स आपस में झगड़ा करते हैं, यू फील एग्जॉस्टेड। सो यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन बट यू आर मेड अप ऑफ होल कॉन्स्टिलेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यू। इस सेल्फ क्रिटिसिज्म और डिफरेंट पार्ट्स का क्या रोल है जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो? सो सेल्फ क्रिटिसिज्म यूजुअली एक झगड़े में रहता है फ्रॉम अ पार्ट जो रेस्ट करना चाहता है और दूसरा पार्ट जो प्रोडक्टिव होना चाहता है। रेस्ट एंड प्रोडक्टिव के बीच में सेल्फ क्रिटिसिज्म वाला पार्ट पिस जाता है। सो जिन लोगों को बहुत ज्यादा लेजी लगता है, या जो लोग कॉन्स्टेंटली माइंड में बोलते रहते हैं कि मैं बहुत लेजी पर्सन हूँ, मैं तो प्रोक्रास्टिनेट ही करता रहता हूँ, राइट? तो यूजुअली देयर रेस्ट पार्ट इज हाईली एक्टिवेटेड, और जो प्रोडक्टिव पार्ट है वो फियर्सली लड़ाई कर रहा है कि मुझे तो काम करना है, मुझे तो अचीव करना है, और ये दोनों लड़ाई करते रहते हैं और हमें लगता है कि कोई ना एक हमें चूज करना पड़ेगा, बस कोई एक तो बैटल में जीतेगा ही ना। सो दिस कॉजेस सिविल वॉर इन योर माइंड। सो इंस्टेड ऑफ चूजिंग वन अनदर, या फिर उन पे गुस्सा करने से बेटर है थोड़ा सा हम क्यूरियस हो जाए कि व्हाट द प्रोडक्टिव पार्ट इज ट्राइंग टू से एंड व्हाट लेजी पार्ट इज ट्राइंग टू से। ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के माइंड से देखेंगे हम। सो अब लेजी पार्ट क्या चाहता है? लेजी पार्ट चाहता है कि आपको एक्चुअली थोड़े बहुत रेस्ट की तो जरूरत है, देखो। और क्रिटिकल पार्ट क्या चाहता है?
जो प्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें क्रिटिकल पार्ट क्या चाहता है? क्रिटिकल पार्ट चाहता है कि हार्शनेस इज द ओनली वे टू मोटिवेट यू। जब तक आप हार्ड नहीं रहोगे अपने आप पे, जब तक आप हार्श नहीं रहोगे, कोई पॉइंट ही नहीं है आपसे रिजल्ट निकलवाने का। हार्श बन जाओ। तो इनर पीस कैसे मिलेगा? जब ये भी लड़ाई में, वो भी लड़ाई में, कोई भी खुश नहीं है। इनर पीस मिलेगा किसी एक पार्ट को चूज करके नहीं, कि सेल्फ क्रिटिसिज्म ही लीड कर रहा है आपकी लाइफ, या लेजी पार्ट ही लीड कर रहा है आपकी लाइफ। आपकी लाइफ कौन लीड करेगा? आप लीड करोगे। तो यू हैव टू बी द लीडर एंड मैनेज ऑल द पार्ट्स। Criticism part should not be the leader. The lazy part should not be the leader. The most productive part should not be the leader. The leader should be you. And the parts needs to be managed. अभी आप मैनेज हो रहे हो, पार्ट्स लीडर बन रखे हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म पार्ट लीडर बन रखा है। वो डिजर्व नहीं करता आपका लीडर बनना। कोई भी पार्ट डिजर्व नहीं करता आपका लीडर बनना। सिर्फ आप ही डिजर्व करते हो आपका लीडर बनना। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, What would you do if you were already enough? जो भी सेल्फ क्रिटिसिज्म हो रहा है वो इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि यू फील एट योर ओन कोर कि यू आर नॉट इनफ। हम एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं। इन दिस इमेजिनेशन आप पूरे एक परफेक्ट पर्सन हो। इन दिस इमेजिनेशन जस्ट इमेजिन, अभी ही करो, ओके? In this imagination, you're just a perfect person, totally worthy. So, what are the things which you would do today to become this perfect person? तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आ रहे हैं। If I lose 10 kgs, I'll be perfect. I'll be enough. If I get that promotion, I'll be enough. If I earn, XYZ amount of, जो हर किसी के दिमाग में होता है, amount of money, I'll be enough. And in this cycle of being enough, whatever you're feeling, आप क्या करोगे उस फीलिंग का? क्या आप लोगों से शेयर करोगे? लास्ट क्वेश्चन वुड बी क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप बिलीव करते हो दैट यू आर इनफ, ट्रूली फील दैट यू आर इनफ, जो भी आपका क्रिटिसिज्म है उसका ऑपोजिट सोच लिया। अब इस ऑपोजिट को फील करो। सोचो कि ये एक्चुअल सच्चाई है। जो भी क्रिटिसिज्म है उसका ऑपोजिट, और सोचो वो सच हो गया है। आज से मैं यही परफेक्ट पर्सन हूँ, मेरे में कोई भी कमी नहीं है, मेरे में सारा कॉन्फिडेंस है, सारा पैसा है, या जो भी इनर वॉइस, इनर क्रिटिक आपको बोलता है, उसका ऑपोजिट सोच के उसे फील करो और उसे बिलीव करो कि ये है। अब करो। अब क्या क्या करोगे लाइफ में? तो हमें अपने अपने दिमाग में जो भी आ रहा है वो अच्छे से बोलोगे, विदाउट एडिट करके कि नहीं ये ऐसा सोच लेगा, ये वैसा सोच लेगा। जो भी क्रिटिसिज्म आपके दिमाग में चल रहा हो, वट एवर। तो आइडिया इज कि सेल्फ कंपैशन के थ्रू हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, नॉट सेल्फ क्रिटिसिज्म। सेल्फ कंपैशन हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम अपने इंटरनल पार्ट्स का लीडर बनेंगे एंड समझेंगे इवन दो हम परफेक्ट नहीं है, हमें बहुत सारी कमियां हैं, बट आई विल अलाउ दिस फीलिंग टू बी हियर। बट ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये बस हमें फीलिंग फील हो रही है ड्यू टू आवर अदर पार्ट्स। सो वंस यू थिंक दैट यू आर एक्चुअली गुड इनफ, what would you do? Would you actually stop being hard on yourself? रेस्ट कर लोगे विदाउट फीलिंग गिल्टी, और वो स्टेप ले लोगे जो आप एक्चुअली बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रहे हो। सो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस डजंट एक्चुअली कम फ्रॉम लाइफ इटसेल्फ, इट कम्स फ्रॉम द प्रेशर ऑफ आई नीड टू बी बेटर बिफोर आई एम अलाउड टू इवन लिव। तो इस पूरे क्वेश्चन का ये गोल नहीं था कि आप आज इस वीडियो के बाद एकदम परफेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं। जो हमने पार्ट्स की बात करी है उसके एडिशन में एक और फाइनल टिप देयर इज, लेट अस अंडरस्टैंड टू थिंग्स, फ्यूजन एंड डिफ्यूजन। जिससे ये फाइट है ना वो बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज लगती है इन योर माइंड, बहुत एक्सट्रीमली आप फील करते हो इस फाइट को इनसाइड। और इस फाइट का मतलब क्या है? जो अंदर एंजाइटी फील हो रही है बिकॉज क्रिटिसिज्म की वॉइस बहुत ज्यादा है। सो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस। जो भी आपको फील हो रहा है, एक्सेप्ट दैट, acknowledge that these thoughts are not your reality, it's not the entire truth। आप थॉट्स को ऐसे मत लीजिए कि यही हमारी सच्चाई है, नहीं, ये तो बस स्टोरी है जो हमने पहले बात करी। थॉट्स आर नॉट वाइज, वो एकदम बेस्ट एडवाइजर्स नहीं है। सो हमारे माइंड का फ्यूजन हो चुका है विद दिस थॉट्स और वही हम फील करते हैं। हमें इसको डिफ्यूजन में बदलना है। दैट इज, थॉट्स आर मेयरली सम साउंड्स, वर्ड्स, बिट्स ऑफ लैंग्वेज जस्ट पासिंग थ्रू आवर हेड्स। थॉट्स मे और मे नॉट बी ट्रू, उसमें सच हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हम ऑटोमेटिकली उसे बिलीव नहीं कर लेंगे। वी पे अटेंशन टू द थॉट्स ओनली इफ दे आर हेल्पफुल। सेल्फ क्रिटिसिज्म यूजुअली लीड कर सकता है डिप्रेशन को। जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन हो। डिप्रेशन की वीडियो मैंने, अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ चुके हैं
that actually means you are serious in improving yourself. I am a therapist and I provide counseling sessions. So please do check out my description, like, share and subscribe. Depression से related और भी videos मैंने पहले बना चुकी हैं. You guys can check it out. And self criticism और depression का बहुत ही close relationship है. So if you're going through sadness, loneliness, do check other videos out. Thank you. Bye bye.